Viewers, good evening. I want to tell you about a massive embarrassment that is staring at the Congress party right in their face. The Karnataka High Court has set aside the election of Congress MLA S.N. Subba Reddy for blatant poll fraud. Yes, the court caught them red-handed in election cheating. His election win is now invalid, and this is a huge blow to the Congress party's image. Viewers, this leaves Rahul Gandhi completely red-faced. Remember how Rahul Gandhi has been pointing fingers at Prime Minister Modi, accusing him of vote chori? Well, now it's the Congress itself that's been exposed for real vote fraud. But this is not just a one-off thing, viewers. This seems to be part of a pattern itself. The hallmark of the, so-called Rahul model of governance. Time and again, the Congress has been accused of fakery. In Karnataka, Himachal Pradesh, Telangana, 3 states ruled by the Congress. They've made tall promises during elections, but once in power, those promises vanish into thin air. No delivery, just empty words. So from poll papers to poll promises, it appears, viewers, that this is all about falsehood and fraud under Rahul Gandhi's brand. The latest court ruling is a devastating hit to the fledgling credibility of brand Rahul. How can people trust a leader whose party gets caught cheating in elections and fails to keep its word? Viewers, it's time for the Congress to face the mirror and admit their model is built on lies. Rahul Gandhi, who keeps calling Modi vote chor. How many times have you heard that? Vote chor, gaddi chod. It's time for Rahul Gandhi to introspect and at the very least, break his silence. Let's open this up without any delay. Shehzad Poonawalla, the national spokesperson of the Bharatiya Janata Party. Ashwini Kumar Mishra, leader of the Congress Party. Vivek Srivastava ji. IP Singh ji, national spokesperson of the Samajwadi Party. Kishore Tiwari ji. Dr. Anand Ranganathan completes this panel. Ashwini ji, आपने तो सुना ही होगा वोट चोर गद्दी छोड़. जी, अब इसके आगे क्या पूछूं? आप तो जानते हैं किसने कहा था और अब किसको जवाब देना है. Pranesh, it is so sad to hear this from you because Bharatiya Janata Party, BJP, which stands for Bhrashtachar, Jumlebazi and propaganda. But it is shameful that media is spreading Bharatiya Janata Party's Jumlebazi and propaganda. Can you exactly tell what is the malpractices he followed, what court spoke about it? Please tell your viewers that it is about an error in the affidavit. It is not about the election malpractices in terms of actually stealing the votes, which Bharatiya Janata Party has done. I know, in the broad daylight. No, 1 minute. Did I say he was caught stealing votes? This is part of the process. When you file an affidavit, you sign on it. Why has Rahul Gandhi been hesitant when the Election Commission has asked him to sign the affidavit? Because he knows what he says about vote chori is not true. In this case, your MLA, this Congress MLA, Mr. Subba Reddy, he lied on oath. That's the case, which is why this is a case of poll fraud. Similar misinformation you did for Mr. Gowda when High Court had a ruling against him. And then what happened in Supreme Court? You never spoke about it. Did you do a debate on Mr. Gowda and Supreme Court verdict? No. The problem is you don't see the malpractices of Bharatiya Janata Party when they send lakhs of rupees directly in the accounts of voters just before the election. That's vote chori. Okay, sir, do you know, no, 1 minute. Do you know the latest cash transfer has happened in Tamil Nadu? What would you call it? What would you call it? Pranesh, vote chori can happen at multiple levels. सर अभी इसका तो जवाब दे दीजिए. मेरा ही नाम बार बार लेते रहते हैं. अभी देखिए आप फिर इस तरफ निकलते हैं. अश्विनी जी कहां जाएंगे? जिस तरफ जाएंगे वही मुझे आप पाएंगे. ऐसे जवाब तो देना पड़ेगा आपको. ऐसे नहीं होगा. देखिए किशोर तिवारी जी हमें ऑस्ट्रेलिया सिडनी से जुड़ रहे हैं. वहां पे कितना इंटरेस्ट है उनको देश के पॉलिटिक्स में. वो भी चाहते हैं कि एक सुन लीजिए सर अश्विनी जी, वो भी चाहते हैं, सुन लीजिए मैं आपके पास आऊंगा, सुन लीजिए
किशोर तिवारी जी भी चाहते हैं कि राहुल गांधी जो बोले सही बोले, लेकिन राहुल गांधी जी नहीं बोलते हैं सही। किशोर तिवारी जी बोलिए अब आप। देखिए प्रणेश, इलेक्शन पिटीशन होते हैं और टेक्निकल ग्राउंड पर रिजेक्शन होता है, लेकिन ये मशीन वाला जो खेल है वो तो हमने पार्लियामेंट के इलेक्शन में देखा, उसके बाद असेंबली में देखा, अब लोकल बॉडी इलेक्शन भी देखा। तो मैं तो चाहूंगा शहजाद इस पर एक ऑफिशियल डिसीजन हो जाए कि बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए। बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं तो अपोजिशन का बहुत बड़ा जो है कि आप चुनाव जनता के नहीं मशीन के सहारे जीतते, तो ये चीज नहीं रहेगी। दूसरी बात थी कि इलेक्शन पिटीशन हाईकोर्ट अगर सेट असाइड करता है किसी का इलेक्शन, तो बहुत सारे इलेक्शन बाद में रिस्टोर भी किए गए सुप्रीम कोर्ट से, तो वो एक टेक्निकल है। नहीं और सर, वो किशोर तिवारी जी मैं बिल्कुल अग्री करता हूं, टेक्निकल है सर, लेकिन इसी आर्गुमेंट से, यही लॉजिक से तो बहुत कुछ टेक्निकल है। अगर एक किसी ईवीएम मशीन में कुछ खराबी आ गई तो वो भी टेक्निकल हो सकता है, बट आप नहीं मानते हो टेक्निकल को। बट माय क्वेश्चन किशोर तिवारी जी इज वेरी सिंपली दिस, if Ashwini Mishra today and you are saying, Vivek Srivastava, I'm coming to you, sir, don't nod your head, I'm coming to you, because the question that I will ask, you will have to resort to this, you will have to nod your head, जवाब नहीं होगा आपके पास। किशोर तिवारी जी, जब राहुल गांधी बोलते हैं वोट चोर गद्दी छोड़, तो वो कौन से बेसिस पे बोलते हैं? नहीं, अगर वोट आप किसे भी डाले, अगर मशीन में वो बीजेपी को निकलता है या कमल को वोट जाता है तो उसको वोट चोरी कहते हैं, और एलिगेशन बहुत सीरियस है। मैं कह रहा हूं एक बार बैलेट पेपर पे चुनाव होकर इसका सोच मोक्ष लगे, क्या मोदी सच में ही पॉपुलर है, क्या फिर इलेक्शन कमीशन का चमत्कार है। तो ये चमत्कार वाली बात जो है इलेक्शन कमीशन की, उसको रूल आउट करना ये राष्ट्र की नहीं तो इलेक्शन तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका में चमत्कार हुआ है क्या? ये मुझे भी नहीं लगता, क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव में जिस तरीके से विपक्ष हारा है, और मैं खुद प्रत्यक्षदर्शी हूं, तो मुझे लगता नहीं कि इतनी बुरी परिस्थिति थी हमारी कि पूरा सुपड़ा साफ हो जाए। तो कुछ तो गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है। ये आप एसीपी प्रद्युमन की तरह बोल रहे हैं कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन अब पता नहीं आपका दया और अभिजीत कौन है इस यहाँ पे। चलिए अब कोशिश करते हैं विवेक श्रीवास्तव जी पे। शहजाद, आई एम कमिंग टू यू, विल हैव टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस, आप अपना नोट्स बनाइए। विवेक श्रीवास्तव जी, इज दिस वोट चोरी, पोल फ्रॉड, यस और नो? जी जी जी, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। देखिए आपको बोला गया यहाँ पे हाथी है, यहाँ पे मक्खी है। हाथी का नाम है बीजेपी की करप्शन, आपको दिख नहीं रहा, आप मक्खी के पीछे दौड़े जा रहे हो, विच इज सो माइन्यूट। अरे भाई वो एक टेक्निकल ग्लिच है, उसको छोड़िए। Who is in power right now? It is the BJP. Who is influencing the election commission? It is the BJP. Why are we saying trash out the EVMs? और किशोर जी ने बिल्कुल सही कहा, हम तो चाहते हैं बैलेट पे हो जाए ना, अगर मोदी पॉपुलर है तो फिर जीतेंगे। Why does the BJP always defend the EVMs? Why does it defend the election commission? Why does it defend the malpractices? Why doesn't it take up the challenge and say yes we are popular? Dr. Ranganathan seems agitated, वो कुछ बोलना चाह रहे हैं, usually waits for his turn, लेकिन आज उनसे रहा नहीं जा रहा है। नहीं, I'll wait for my turn, Pranesh, because I don't know. I'll leave it to you. Shall I please say what? सर आप बोलिए प्लीज, यहाँ पे अभी वो यूजीसी वाला वो स्टॉप हो गया है, अभी गाइडलाइंस आए नहीं है, बोल सकते हैं आप। नहीं, देखिए, अगर ये इलेक्टोरल फ्रॉड की बात कर रहे हैं तो सीधे विवेक से एक सवाल है, भाई गिव अप द चीफ मिनिस्टरशिप, गिव अप द गवर्नेंस ऑफ केरला देन, इफ यू डोंट बिलीव इन द इलेक्शन कमीशन। What is this double standard, Vivek? I didn't expect this from you. I expect this from Ashwani, whose only thing lower than his intelligence is his credibility. Coming to him, I want to ask a very simple question. A man is sworn to give a proper election affidavit. Based on that affidavit, he is selected, he is okayed that he is going to go in front of the voters, and the voters have confidence that he is not lying. That is mandated by the Supreme Court. Now this man does not declare the savings or the assets of his wife and his daughter as is alleged. The High Court has found this to be true. The man wins a seat. Thousands of people vote for him. Has he not stolen their confidence and their vote? It's a simple yes and no question.
Yes, you can say it is a technical issue. Yes, you can say there is no electoral fraud on the day of the election. But the fact of the matter is he has cheated the voters. It's a fact. Otherwise, why give the election affidavit? Yeah? It's a simple question, Pradesh. Shehzad, Vivek Srivastava, Ashwini ji, Kishore Tiwari, they are saying that the BJP is using this as an excuse because you can't answer real questions, which is if you're so confident of PM Modi's vote catching ability, why don't you resort to ballot papers? अभी जो चुनाव कर्नाटका के 4 टाउन पंचायत में हुए जहां पर बीजेपी जीती वो बैलेट पेपर पे ही थे प्रणेश, और जो कांग्रेस पार्टी केरल में लोकल बॉडी के चुनाव जीती वो ईवीएम पे थे विदाउट वीवीपैट। तो जब सूट करता है तब ईवीएम ठीक होता है, जब सूट करता है तब ईवीएम को गाली देते हैं। अभी बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट ने नंजे गौड़ा के फैसले को ओवरटर्न किया। इसी सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम पर डिसीजन दिया ना, एक नहीं 41 टाइम्स, और लास्ट डिसीजन में बोला कि you can't doubt the EVM when you lose and then you hail the EVM when you win. And Omar Abdullah repeated this, Supriya Sule repeated this. So then you don't want to believe the Supreme Court. Actually, the issue is not about ECI or EVM. It is about EMI. EMI जानते हैं क्या है प्रणेश? Entitled मानसिकता of Indira's grandson, emergency मानसिकता of Indira's grandson. ये entitled मानसिकता ये है कि हम अपने आप को संविधान तंत्र के ऊपर समझते हैं, हम अपने आप को लोकतंत्र के हर इंस्टीट्यूशन के ऊपर समझते हैं। टुडे हु वाज सेइंग दैट देयर इज वोट चोरी, टुडे देयर इज इंफॉर्मेशन चोरी एंड ट्रूथ चोरी। भाई, when you don't disclose the material information, you're doing fraud on the voters, and that fraud on the voters has been coming under RPA Act, Section 123, Section 100, Section 125, and Section 123, which is corrupt practices. The court has convicted him. Now I want to ask 3 or 4 questions of Rahul Gandhi ji. Rahul Gandhi ji, when are you going to do the first press conference, atom bomb press conference on this particular information and such ki chori? No answer on that. Acha, secondly, they have a history of the vote chori. Khandani vote chor hai. Pranesh ji, when you become the citizen of India, only then you can get the voting right, correct? But you know, there is a Brazilian model to chhod do. There is Italian model. Model not meaning model like the swimsuit model. I'm talking about model means specimen. Otherwise, they will take it in different sense. Italian model is that without becoming citizen of India, you have got the voting right, and court has issued notice to Sonia Gandhi. उस पे कुछ नहीं बोलना है. In 1987, Jammu Kashmir elections were rigged. Shashi Tharoor has said this, and that too by Congress. The same Karnataka Home Minister G. Parmeshwara said that before EVMs came, we used to khatakhat loot the booths. And finally, 1975, on technicality, Vivek Srivastava's leader Raj Narayan got Indira Gandhi convicted. Mr. Vivek Srivastava, was it technicality? आप एलिफेंट और चींटी छोड़ो, आप व्हाइट एलिफेंट को देखो. राहुल गांधी इज द व्हाइट एलिफेंट. चुनाव हारते हैं तो संविधान को गाली देते हैं. Let him answer. No. There is a difference. CPI and Shiv Sena both supported the emergency along with Mrs. Gandhi because we felt the fascist forces backed by the American funding are coming in the nation. Right and wrong, it can be debated. Now the second part is, I'm again coming to you, is what you're talking about. Sir, एक बार फिर से बोल दीजिए, आपने क्या बोल दिया? Process. Nobody is against any process. यहाँ आप कह, सर बोलने दीजिए, मेरी बात सुनिए पहले आप. Let me speak clearly. आप कह रहे हैं कि एक कॉर्पोरेटर, एक एमएलए या एक आदमी कांग्रेस का एफिडेविट अगर गलत भी भरता है और जानबूझ के भी गलत भरता है, जिसको मैं नहीं मानता, तो पूरी कांग्रेस करप्ट, राहुल गांधी की कॉन्स्पिरेसी, कांग्रेस इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन कर रही है. और यहां जब हम एसआईआर का एजिटेशन करते हैं तो मीडिया के मुंह में दही जमी हुई है. आप एसआईआर पे कोई नहीं बोलता, ज्ञानेश कुमार पे कोई नहीं बोलता. विवेक श्रीवास्तव जी, कोई दही नहीं जमी हुई है. नहीं, एक मिनट, कुछ होना भी तो चाहिए बोलने के लिए. फॉर राहुल गांधी, हाउ इज इट ओके टू कॉल मोदी वोट चोर and then to say gaddi chod, or you didn't realize what you've said? Dr. Ranganathan, did you hear what Vivek Srivastava just said? नहीं, ये दही नहीं जमा रहे, ये कुछ और जमा हुआ है इनका. I mean, I cannot believe what Vivek just said. He said that communists supported Indira Gandhi's emergency because we wanted to stay away from the fascist forces coming. So they supported fascist forces so that fascist forces would not come in. अरे भैया, आप महान हो, आप पुरुष ही नहीं, आप महापुरुष हो आप. Which is the RSS. No, Vivek Srivastava means that Congress is less fascist, and you know, had Indira Gandhi not imposed emergency, there would be real fascism in the country, right, Vivek ji? वो कुछ बोल रहे. Shehzad is also saying something. Congress is not a fascist party. Who says Congress is a fascist party? I know.
How can Congress you? is not a fascist party. No, 1 minute. Absolutely a not. party that And imposes emergency is what? Truly democratic? Vivek Srivastava? Of course, it was the need of the time. I feel that Need way. of the time. Maybe some people don't. Need At of that the it time. was the need. Shehzad Poonawala, when will you Yes, see the need at of the that time, time? yes. आप लोग Yes. अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी में क्यों हैं? ये विवेक श्रीवास्तव विल सपोर्ट यू इफ यू डिक्लेयर इमरजेंसी. नीड ऑफ द टाइम होना चाहिए उसमें ऑर्डर में. प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट हैव दैट क्लॉज. नीड ऑफ द आवर. Vivek said that he and the left and the Shiv Sena, Uddhav Sena supported the emergency to defend from fascist forces from coming to power. Those fascist forces were supported by Lalu, JP and Mulayam. Is that his argument? So I want to ask IP Singh, was he supporting fascist forces? Was Mulayam Singh Yadav in jail for 19 months for fascist forces? Now Mr. Vivek answer. They realized they were with the wrong forces. और उसके बाद मुलायम सिंह यादव ने 10 फुट की डंडी से भी आप जैसी फासिस्ट पार्टी को टच नहीं किया. सेकुलरिज्म के चैंपियन थे मुलायम सिंह यादव. और लेफ्ट चाहता था, कम्युनिस्ट चाहते थे मुलायम सिंह यादव प्राइम मिनिस्टर बने इस मुल्क के. चाहते थे हम इस चीज को. वो बन नहीं पाई, अनफॉर्चुनेट था. एंड ही वाज द बेस्ट डिफेंस मिनिस्टर एवर. तो एक एजिटेशन को लेकर के आप किसी के पॉलिटिकल समीकरण को डिस्कस ना करें. कम्युनिस्ट और हरकिशन सिंह सुरजी, द चाणक्य ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ द टाइम, वी सपोर्टेड मुलायम सिंह आउट एंड आउट. As a Vivek ji, one statesman, second. Okay, Shehzad. Bhashan nahi. I want to ask specific question. Was Mulayam Singh Yadav, Lalu and JP wrong? they were not aware of the fundings coming. They were not aware of how the RSS was going to target the country. Vivek Srivastava is aware. They were not aware. So the tallest socialist leaders, they were not aware. But the most popular communist leader today on national television is aware. IP Singh जी, अब आपने तो सुन लिया है सब कुछ. आप सवाल आप तय कीजिए और जवाब दीजिए उसका. मैं यही कहना चाहता हूं कि साँच को आज क्या, जब इतना अच्छा वातावरण है और हमारे वयोवृद्ध 76 वर्ष के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की इतनी बढ़िया साख और विश्वसनीयता है, तो छोटे पाकिस्तान बांग्लादेश में अभी बैलेट पेपर पर चुनाव हुआ है. बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं. अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपियन कंट्रीज में जाने की सर जरूरत वहां तो नहीं है. अपोजिशन लीडर्स तो पड़ोस जेल भी में कर अभी रहे हैं. बैलेट वो भी पेपर- बोल दीजिए, वो भी कर देना चाहिए. इमरान खान का देखिए पाकिस्तान में क्या किया है. बांग्लादेश में देखिए लोगों का क्या हो रहा है. यही मॉडल आप बोल दीजिए कि यही कर देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश में होना चाहिए. नहीं, उससे बदतर, अरे उससे बदतर स्थिति है. जेलें ठसाठस भरी हुई हैं. उत्तर प्रदेश से लेके जहां भी बीजेपी की सरकारें हैं, अपोजिशन के लोगों से ठसाठस जेलें भरी हुई हैं. जहां 200 लोग हैं वहां 1200 एक बैरक में लोग ठूस के भरे गए. आईपी सिंह जी चलिए ठीक है. आईपी सिंह जी देखिए, आपने भी इमरजेंसी हॉरर्स आप विटनेस भी किया होगा, पढ़ा भी होगा. एक मिनट आईपी सिंह जी सुन लीजिए. आईपी सिंह जी सुन लीजिए सर प्लीज. आईपी सिंह जी सर, आई रिक्वेस्ट यू लिसन टू मी. अभी आप कह रहे हैं जेलें भरी हुई हैं. इमरजेंसी में भी जेलें भरी हुई थी. उस समय कोई कोर्ट केस भी नहीं हो रहा था. अगर अभी कोई जेल में है तो वो कोर्ट जा सकता है. अभी अश्विनी जी ने शुरू में क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट हैज ओवरटर्न दैट रूलिंग, सेट दैट असाइड. उसको कैसे हम कांग्रेस को माफ कर सकते हैं? नहीं कर सकते. हम आज भी कहते हैं कि कांग्रेस ने वो आपातकाल आप कह रहे हैं ना, विवेक श्रीवास्तव जी कह रहे हैं नीड ऑफ द आवर था. वो उस समय की जरूरत थी. ये विवेक श्रीवास्तव जी कर रहे हैं. पहले आप आपस में फैसला कर लीजिए. तो ये तो आज ये इसका मतलब कि बीजेपी भी यही बात करी कि आज आपातकाल की जरूरत है देश में. विवेक श्रीवास्तव, अब आप बीजेपी में देखिए सुन दिल्ली में लीजिए, क्या हुआ? समाजवादी पार्टी. आज- और अनलाइक मुलायम सिंह दैट यू थिंक वाज नॉट अवेयर, आईपी सिंह इज अवेयर. ही नोज व्हाट ही इज सेइंग. नाउ यू आंसर हिज क्वेश्चन. मुलायम सिंह यादव, आप सुनिए सर, सुनिए. आप सुनिए, आप बहुत शॉर्टकट मार रहे हैं. शॉर्टकट मत मारिए, इंटेलेक्चुअली बात करिए. क्या मुलायम सिंह यादव को तीसरे मोर्चे के समर्थन से लेफ्ट के हरकिशन सिंह सुरजीत प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे या नहीं? आप बताइए, आप पत्रकार हैं. द लेफ्ट वांटेड हिम टू बी द प्राइम मिनिस्टर एंड ही वाज द बेस्ट डिफेंस मिनिस्टर एवर.
हमारी कैजुअलिटीज कम हुई, चाइना की कैजुअलिटीज कम हुई, क्योंकि बतौर डिफेंस मिनिस्टर मुलायम सिंह यादव ने जो करार चाइना के साथ साइन किया, उसमें 20 किलोमीटर दूर तक हम और वो दोनों हथियार नहीं ले जा सकते थे. And that is why casualties on both the sides were minimal. He was a brilliant man. Both और इस sides. देश में कोई champion of secularism. Casualties of both sides. Now, in praising Mulayam Singh Yadav, is also praising China. You know, what a true communist you are, Vivek Srivastava. You know, may your tribe increase because communism needs warriors like these. Sir, ऐसे नहीं होगा. Dr. Ranganathan. नहीं प्रणेश, आपने क्या कन्वेयर बेल्ट लगाई हुई है क्या? एक के बाद एक सेंसलेस कमेंट्स आ रहे हैं विवेक से. ये क्या चल रहा है? नंबर वन, इट वाजंट मुलायम सिंह जी, इट वाज राजीव गांधी's accord that actually talked about what Vivek has just talked about. And secondly, the textbook definition of fascism is what Rahul Gandhi's grandfather was. He was in Mussolini's army. अरे भाई, फाशिज्म थोड़ा पढ़ लो. इट इज एम्बैरेसिंग फॉर अ साइंटिस्ट टू टीच यू. पता नहीं किसमें, अफ्रीकन स्टडीज में आपने किया हुआ है, शायद डिग्री करी हुई है विवेक, बट यू अंडरस्टैंड व्हाट फाशिज्म इज. एंड फॉर यू टू से that we wanted to not have fascist forces, that's why we elected fascist forces, supported them, is unbelievable hypocrisy. And it tells you that in your country, I would leave it to you to define which your country is, but in your country, there is no demarcation between democracy and dictatorship. Vivek Srivastava, before you answer that, or you know, at least prepare to answer that, I just want to bring in Ashwini ji. Ashwini ji, Vivek Srivastava is saying emergency was the need of the hour. Would you want to thank him? Pranesh, first you asked that why Rahul Gandhi ji is calling Modi ji's boat chor, gaddi chor. Let's start from there. I think your debate was on that. तो सर, ये आपको 20 मिनट बाद इसका जवाब अभी आया है. तब मैं जब पूछ रहा था तब आपने जवाब नहीं दिया. SIR, no, let me finish that. Pranesh, 3 स्टेजेस होती हैं. पहले आप वोट काट सकते हो, जो भी SIR में काटे जा रहे हैं. दूसरी स्टेज होती है जब वोट डालने जाते हो तो एक व्यक्ति 10-10 जगह वोट डालता है, जिसको राहुल गांधी जी ने मल्टीपल टाइम एक्सपोज किया है. और तीसरी स्टेज होती है जब वोट की काउंटिंग हो रही होती है, उसमें आप फ्रॉड करते हो, जो ईवीएम के थ्रू करते हो. अगर हम ईवीएम को बैलेट से रिप्लेस करते हैं तो एटलीस्ट थर्ड वाला जो फ्रॉड है वो नहीं हो पाएगा. और हमने देखा अभी इस रिसेंट 2024 में देखा, अलीगढ़ में देखा, फर्रुखाबाद में देखा कि पहले सांसद जिता दिया गया. बहुत सब जगह देख लिया. चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं. देखिए, लेट्स गो बैक टू, मुझे इमरजेंसी तक आपको मैं ले जाऊंगा अगर, तो फिर वापस आना मुश्किल होगा. आप 2014 तक चलिए. वहां ईवीएम जब हुआ, ईवीएम तभी भी था, द कांग्रेस वॉज इन पावर, मोदी वॉज इन ऑपोजिशन. वो कैसे जीते सर? क्या इंजीनियरिंग किया था आप लोगों ने? प्रणेश, एक क्रिमिनल को आप क्रिमिनल कब कहेंगे? जब उसको 10 बार क्राइम करने का मौका मिले, वो 10 बार क्राइम करे या एक बार कर ले, गुड इनफ है. ठीक है, चलिए, ओके. नाउ सर, जस्ट स्टे विद दैट थॉट. अश्विनी जी, बाय दिस लॉजिक, ये तो प्रफाउंड है बिल्कुल. बाय दिस लॉजिक, आप ये जो जब कोर्ट हैज सेट असाइड द इलेक्शन ऑफ योर कांग्रेस एमएलए, इसको आप मानेंगे क्रिमिनल एक्ट है? फ्रॉड बोलेंगे आप इसको? उसका फैसला कोर्ट करेगा. कर दिया कोर्ट ने कर दिया है, और जो भी उसका होगा. बट दिस इज okay, नॉट. so are you saying that the Congress party does not believe in high court? This is not Okay, chori. Congress party does not believe in high court. Congress party only believes in Supreme Court, and Supreme Court had said something about Rahul Gandhi for his remarks on Indian soldiers. Should I read it out to you, sir? उसका फैसला कौन से कोर्ट में होगा? शहजाद, पहले तो प्रणेश जी, आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट यू, द वे यू आर गोइंग, दे विल ब्रिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट यू. दे हैव ऑलरेडी गॉट इट अगेंस्ट स्पीकर, दे हैव गॉट इट अगेंस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन. पता चला कल 8 बजे आप नहीं रहोगे, आपको भी 10-15 दिन बाहर रहना पड़ेगा और कोई टेक ओवर कर ले. why are you giving them ideas? Answer my question. अच्छा, दूसरी बात, हैव यू हर्ड द आर्गुमेंट मेड बाय अश्विनी? मुझे लगता है आज प्रणेश जी आपने सारे ऑपोजिशन वालों को कुछ खिलाया है डिबेट में आने से पहले. अश्विनी जी ने बोला देयर आर 3 स्टेजेस. पहले वोट कटिंग होती है, फिर वोट कास्टिंग होती है, फिर वोट काउंटिंग होती है. अरे अश्विनी जी, अगर ईवीएम फिक्स था तो वोट कटिंग कौन करेगा और वोट कास्टिंग कौन करेगा? ईवीएम में वैसे ही हमारे वोट में आ जाएगा. कौन बेवकूफ होगा जो ईवीएम सेट होने के बाद बाकी तो सेटिंग करेगा? ये केवल अश्विनी झूठ बोल रहा है. You have to lie. So lie anything. Now second point. वो IP सिंह जी सर, one question to IP सिंह जी from public demand.
आईपी सिंह जी ने बोला ठूस ठूस कर नेताओं को ऑपोजिशन के जेल में डाला है। मुलायम जी तो ठूस ठूस के 19 महीने रहे, लालू जी भी ठूस ठूस के उनको इतने महीने रखे। आईपी सिंह जी 5 लीडर समाजवादी पार्टी के, डोंट काउंट मिस्टर शर्जील इमाम, उमर खालिद एंड आजम खान, 5 समाजवादी पार्टी के लीडर बता दो जिनको ठूस ठूस के जेल में रखा है विपक्ष के समाजवादी पार्टी के नेताओं को बीजेपी की सरकार ने। प्लीज 5 तो नाम होंगे आपके पास, बताइए। अरे चलिए 5 नाम तो मैं अपने जिले के ही बता देता हूं। रमाकांत यादव जी, उनको सिर्फ वो खिलाफ बोल रहे थे, सरकार के खिलाफ बोल रहे थे, 3 बार के सांसद, 1 बार बीजेपी के भी सांसद है, और उनको 4 साल से जेल में रखा है। कोई ऐसा जिला नहीं, कोई ऐसा कि हमारे 2 नेता 3 नेता बड़े बड़े नेता, हमारे पूर्व विधायक, पूर्व सांसद सलाखों के पीछे ना बंद हो और बहाने से बंद है। आईपी सिंह जी जेल में रखा है, क्या मतलब है? जेल में रखा है मतलब कि कोर्ट ने जेल में रखा है ना, कि उनको पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया 4 साल से। कोर्ट में केस गई होगी ना सर। ये सुन लीजिए। अरे भैया, निचली अदालतें सरकार, राज्य सरकार के इशारे पर चलती हैं। वेरी गुड। निचली अदालतें, आपके एक लीडर ने कहा था लोअर कोर्ट्स विल सेट द कंट्री ऑन फायर। आई डोंट रिमेंबर द नेम, बट दिस वाज द कमेंट बाय आई थिंक someone from the Yadav clan, Ram Gopal Yadav, Dr. Ranganathan had said this about lower courts. Here is a situation where Ashwini Mishra will not believe. Yeah, what is it, sir? मैं आईपी सिंह जी की बहुत इज्जत करता हूं, ये खुद जानते हैं, लेकिन इस तरह नेशनल टीवी पे झूठ बोलना और सोचना कि ये निकल जाएंगे साइड से पतली गली से खंबा बचा के, आईपी सिंह जी ये नहीं होगा। जिनका आपने नाम लिया, क्या आपको पता है कि उन पे 5 केसेस चल रहे हैं, और जो सबसे पुराना केस है 1998 का केस चल रहा है उन पे, और जो कन्विक्शन उनका हुआ है वो कोर्ट ने कन्विक्ट किया है। तो ये कहना कि ठूस ठूस के भर रखा है, क्या आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ ने पर्सनली उनको पकड़ के जेल में डाला है? ऐसा झूठ मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता, मैं विवेक से एक्सपेक्ट करता हूं और मैं अश्विनी से एक्सपेक्ट करता हूं। शहजाद भी कुछ बोल रहे हैं सर, एक ही साथ जवाब दे दीजिएगा। शहजाद इज सेइंग समथिंग। सुप्रीम कोर्ट हैज डिनाइड हिम बेल बिकॉज ही इज द बिगेस्ट माफिया। कि डॉक्टर साहब उत्तर प्रदेश में मैं प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं कि उत्तर प्रदेश में बैलेट पेपर से चुनाव करा दीजिए। अब बैलेट पेपर पे चले गए, अभी यू आर क्वेश्चनिंग, अभी नाउ यू आर क्वेश्चनिंग आईपी सिंह जी अबाउट, आप सोच लीजिए सर, अगर बैलेट पेपर पे था तो मैंने तो सवाल आपसे बैलेट पेपर पे पूछा था, लेकिन आप यहां वहां चले गए। अब आपने 5 तो नाम बताए नहीं, एक नाम बताया जिसमें 5 केसेस हैं, और वो भी गलत बता दिया आपने। अरे भाई मनोज यादव को अभी बाराबंकी में बंद कर दिया, हमारे प्रवक्ता आपके चैनलों पर। अच्छा, उनपे मनोज यादव जी पे चार्ज क्या, ये बताइए। मनोज यादव जी पे चार्ज कौन सा है वो बताइए। आपको गिनाए जा सकते हैं। आईपी सिंह जी, मनोज यादव जी पे। अरे आप भी ऐसे, अरे अब मैं, अगर आप 2 दिन बोलिए, आपके ऊपर कोई ऐसी धाराएं नहीं होंगी प्रणेश जी जो उत्तर प्रदेश सरकार नहीं ठोक देगी। ये बाबा जी जो आदित्यनाथ उर्फ एलियस कहिए, एलियस अजय सिंह साहब हैं। सर मेरे ऊपर भी हुआ था, जब हमने पीएफआई पे स्टोरी की थी तो केरला में हो गया था एफआईआर, फिर हमने कुछ किया था उसमें वेस्ट बंगाल में हो गया, बट वो सब छोड़ दीजिए। आप ये जो कह रहे हैं, यू हैव टू बैक व्हाट यू आर सेइंग विद फैक्ट्स। 5 नाम आपको नहीं मिले, अभी भी स्ट्रगल करके आप 2 नाम बता पा रहे हैं। पर कोई बात नहीं, आईपी सिंह जी देखिए आपने बता दिया। अश्विनी जी, सर ही डजंट बिलीव इन द लोअर कोर्ट, यू डोंट बिलीव इन हाई कोर्ट। योगी आदित्यनाथ जी ने कितने सारे केस उनके ऊपर थे वो वापस लिए। आपको पता चल जाएगा कि इंडिया का प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कहां पर है प्रणेश, आपको आइडिया नहीं है, क्योंकि आप उस हाथी पे बैठे हुए हो, इसलिए आपको चींटी दिख रही है, आपको हाथी नहीं दिख रहा। आप हाथी पे बैठे हुए, जिस दिन आप हाथी की तरफ देखने लगोगे और हाथी पर रिपोर्टिंग करने लगोगे, आप पे भी हजारों केस लग जाएंगे। बिकॉज हमारे देश की हालत यही है, जो सरकार के खिलाफ बोलता है या तो आप उसको देशद्रोही बोलते हो, या उसको बोलते हो पाकिस्तान चले जाओ, या उसको आप जेल भेज दोगे, क्योंकि ये आपने डेमोक्रेसी की वैल्यू खत्म कर चुके हैं।
आप ट्राई करिए प्रणेश, हर 5 दिन आप डिबेट करिए इस बात पर कि एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का नाम क्यों है, एप्स्टीन फाइल में हरदीप पुरी का नाम क्यों है, हमारे देश की इकोनॉमी के शेप की क्यों है, टॉप 50% लोगों के पास 15% वेल्थ क्यों रह गई है, करके देखिए आप। अगर 4 दिन बाद आप 5वें दिन जेल में ना दिखो तो बात करना। मैं कर चुका हूं सर, मैं कर चुका हूं। वो ताली बजा रहे विवेक श्रीवास्तव जी, ऐसे ही है कांग्रेस लीडर जो ऐसे स्पीच पे ताली बजा देते हैं जिसपे वोट नहीं मिलती है। तो ये विवेक श्रीवास्तव जो कर रहे हैं, इट इज नॉट गुड फॉर यू अश्विनी जी। आपको इनको बोलना चाहिए शो के बाद, आई नो दैट आई एम लाइंग, व्हाई आर यू चीयरिंग मी अप? आप ये बोल दीजिएगा इनको। डॉक्टर रंगनाथन, व्हाट स्टार्टेड फ्रॉम बैलेट पेपर डिमांड इज नाउ हियर एट दिस फार्सिकल लेवल। नहीं, इनको पता है कि द ओनली वे दे कैन विन द इलेक्शन एंड द ट्रस्ट ऑफ द पीपल इज थ्रू ईवीएम्स एंड दे आर नॉट विनिंग इट, सो दे नो इट that the only other resort is ballot paper and ballot stuffing. We want to go back to the 80s and the 90s. Do you remember what happened in 1987? Blatant ballot rigging and stuffing, and Shashi Tharoor admitted it, that 1987 Kashmir elections were rigged. कांग्रेस रिग्ड इट। नंबर 2, जो आईपी सिंह जी कह रहे हैं कि और बहुत सारे देश हैं वो ईवीएम से, भाई उनकी ईवीएम जो है साइबर से कनेक्टेड है, हमारी डिसकनेक्टेड है। सुप्रीम कोर्ट हैज हर्ड दिस आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स। वीवीपैट का केस सुप्रीम कोर्ट ने हियर किया है, हर केस सुप्रीम कोर्ट ने हियर किया है ईवीएम्स पे। अब दोबारा वो मत उखाड़े। और तीसरी बात, जो ये सिलेक्टिविटी लाते हैं ये दुनिया भी देख रही है। अभी कर्नाटका में दर्जनों लोगों को जेल में ठूस रखा है, जरा सी बात करते ही टीचर सस्पेंड हो जाता है। अभी आपने देखिए बंगाल में क्या चल रहा है, अभी देखिए यहां पे महाराष्ट्र में जब महाविकास आघाड़ी थी तो कंगना रनौत के ऑफिस को हाई कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन करते हुए बुलडोज कर दिया था, लेकिन उनको वो सब नहीं दिखता। इनको जो बीजेपी रूल स्टेट्स में अरेस्ट हो रहा है वो दिखता है। प्रॉब्लम है कि लोग भी देख रहे हैं आप लोगों को। विवेक श्रीवास्तव, बैलेंसिंग एक्ट करते जाइए, करिए जाइए बैलेंसिंग एक्ट। बैलेंसिंग एक्ट से डॉक्टर रंगनाथन कुछ नहीं होता, सच बोलना सीखिए। अगर बीजेपी गलत है, इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज रॉन्ग, लर्न टू से यस इट इज रॉन्ग। सर वो तो बोलते ही रहते हैं, जो गलत होता है उस पर बोलते हैं। एकेडमिशियन फ्रॉम नहीं बोलते सर, नहीं बोलते ना, वो एथिज्म भी बोलेंगे और साथ में महाकाल भी बोलेंगे। अच्छा विवेक श्रीवास्तव, डू यू थिंक, ओके लेट मी पुट इट टू यू दिस वे. Vivek Srivastava, you are accusing Dr. Ranganathan of doing this balancing act, okay? Do you think in the last 11 years, Narendra Modi as Prime Minister has done anything good? Absolutely yes, many things good. Every government does good. That is where is the difference. बताइए sir, क्या है? What do you think that he as Prime Minister has done very well? I want to hear from you. See, I'll tell you. Hold on, sir. Sir, hold on, sir. आपके चैनल पे हमने अटल बिहारी वाजपेयी की भी तारीफ करी है। जब रशिया से ऑयल खरीदा था तुमने अपने प्राइम मिनिस्टर की भी तारीफ करी है। देखिए आपसे तो बैलेंसिंग भी नहीं हो रहा है। आप तो इतने लेफ्ट हो गए हैं कि आप सेंटर में भी नहीं आ पा रहे हैं। यही प्रॉब्लम है। शहजाद Vivek ji, I want to ask you one question. Vivek ji, please, I want to ask you a question. Vivek ji, since you are the most objective, balanced person, Supriya Sule cannot blame EVMs. EVMs have helped me also win. Same statement made by National Conference and Omar Abdullah. Vivek ji, is Rahul right or is Supriya Sule right? Yes, the truth is समय और स्थान के हिसाब से सत्य होता है। वेरी गुड, काल पात्र और वेरी गुड। विवेक श्रीवास्तव जी, आपसे बैलेंसिंग भी तो नहीं होता है, बोल देते आप कुछ तो बोल देते। Now, you see, sir, my problem is, I'll tell you, Vivek Srivastava, look, I'm fond of you, but this is what you do. You were clapping for Ashwini Mishra. Who do you think on this panel will clap for you? You expose yourself. फिर आप दूसरे बार आएंगे और आप मुझे कहेंगे कि you should not be arrogant, Pranesh, this, that, the other. ऐसे मत कीजिए ना. You lay the trap for yourself. उसमें आप खुद ही फंस जाते हैं. It reminds me of a speech in parliament. अभी recently कहा गया था. Choke, tap, something to this effect. वो वैसा कर लेते हैं आप. या बोला था. मैं बता देता हूं, उस पर भी बोल देता हूं मैं. सर, he is the fittest leader of opposition ever. और मैं उनके ट्रेनर से मिला हूं. सर तो एक लैंग्वेजेस के ज्ञान. इज पॉलिटिक्स अबाउट फिटनेस? मेडल सर, मेडल नहीं चाहिए, मैंडेट चाहिए ना. फिटनेस वाले लोग जा रहे हैं उधर. नीरज चोपड़ा, ऑल दी अदर्स आर गोइंग टू ओलंपिक्स. सर 10 सेकंड दीजिए. सर 1 मिनट.
Aikido is a martial art in which you protect the person, protect yourself and don't harm him. It's a Buddhist science. Sir, the इसको man पहले claims to be पढ़िएगा, protecting the constitution. For that you don't need karate, martial art और aikido. Constitution को बचाने के लिए aikido नहीं चाहिए. डॉक्टर रंगनाथन, कराटे वराटे नहीं. That Vivek has problem in hearing. Now he has problem in seeing as well. He's saying Pappu is the fittest. Have you seen Pappu? He is obese. I'm sorry to say this. Vivek, how can you say Pappu is fittest? Which Pappu are you talking about? No, he's not. I'm not talking about. I do not know about any Pappu. I am talking about Sri Rahul Gandhi. He the is talking honorable about Pappu leader Yadav. of opposition. He's a very fit man, psychologically, mentally, emotionally. but Vivek Srivastava, that's not the point. Now you tell me, sir. 1 minute. Are you 1 minute? Vivek Srivastava जी, मुझे एक बात बताइए. Is Mr. Khadge well versed with karate, aikido, anything, Muay Thai, कुछ ऐसा, kickboxing, कुछ आता है खड़गे जी को? He has his own skills. He नहीं, has his एक own मिनट. skills. He has उनको very good कराटे personality. aikido नहीं आता है. एक मिनट. Are you saying is he any less equipped to protect the constitution? He has different skill sets. Different skill No, set. he has different skill sets. IP सिंह जी, Everybody has different skill अखिलेश sets. यादव जी को आता है, कराटे आता है? अरे भाई कैसे कराटे सबको आएगा? हम तो जानते ही नहीं, उसका अल्फाबेट नहीं जानते. हम डॉक्टर रंगनाथन जी को ये जरूर कहना चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने से पहले उनके मुकदमे एक बार सुना दीजिए. केशव प्रसाद मौर्य जो बहुत बड़ा अपराधी था, वो मुख्यमंत्री उनके मुकदमे बता दीजिए. चलिए, because you're अब talking ब्रजेश about पाठक, Yogi Adityanath, I want to slightly shift our attention and I thank किशोर तिवारी जी. किशोर तिवारी जी, आप सिडनी में हैं, देखिए वहां पे अच्छे ट्रेनर्स को आप पकड़िए और कराटे तो सीख के वापस आइए. आपको कांग्रेस पार्टी में बड़ा कुछ मिल सकता है रोल, क्योंकि उसी पे डिसाइड हो रहा है वहां पे. वो फिटनेस पे दे रहे हैं और कोई क्राइटेरिया है नहीं. विवेक श्रीवास्तव जी कोशिश कर रहे हैं, बट बिकॉज ही डज नॉट नो कराटे, ही हैज नॉट बीन एबल टू गेट इन. आई विश यू ऑल द बेस्ट किशोर तिवारी जी.